آج مجھے جیل میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ گرفتاری کے وقت میں نے محلے والوں کی بہت باتیں سنی تھی کہ نیک شوہر کو قتل کر دیا، اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے گوا دی، مجھ پر عذاب نازل ہوگا، مجھے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ لوگوں کو شاید یہی لگتا تھا کہ میں بدکار تھی۔ جب میرے غیرت مند شوہر نے جب مجھے روکنا چاہا تو میں نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو خود دکھانا پڑتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، سب ٹھیک تھا۔ پہلے پل میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں بھی راضی تھی کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا، اتنی چاہت دینے والا شوہر ملا ہے۔ میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب بدلتا چلا گیا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے خراب ہوتا گیا، وہ مجھ سے اکثر کھینچا کھینچا رہنے لگا، اس کی دلچسپی مجھ میں کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہتا اور جب واپس آتا تو اس کے کپڑوں پر عجیب سے داغ لگے ہوتے۔ اس کے کپڑوں میں سے اکثر یہ پرفیوم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب میں پوچھتی تو وہ غصے میں آ کر مجھے گالیاں نکالنے لگ جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ اتنا غصے میں آ جایا کرتا تھا کہ مجھے کئی دن کے لیے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی قید میں آ چکی ہوں۔ ایک دن میرا شوہر صبح کے وقت گھر آیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے گور کر دیکھا۔ کہاں تھے تم رضا؟ میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور بولا، کیوں میرا دماغ چاٹ رہی ہو؟ جاہل عورت، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے بتاؤ کیا کرتے پھرتے ہو تم؟ میں ساری رات گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں دبی دبی آواز میں چیخ رہی تھی، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیا سارا دن تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ وہ یہ کہہ کر کمرے میں جا چکا تھا۔ میں بھی پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ موبائل پر مصروف ہے اور بہت آرام سے لیٹا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میری نیند خراب کر کے اب خود سکون سے لیٹا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر کپڑے بھی پھاڑ کر آتا تھا، کبھی گلے بانس سے کپڑے پھٹے ہوتے تو کبھی دامن میں سے۔ میں شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی جیب سے ایسی چیز برآمد ہوتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بازاری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میں تنگ آتی جا رہی تھی، دن بہ دن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ دنیا کی نظر میں میرا شوہر پرہیزگار، 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن گھر میں وہ اس کے برعکس ہوتا تھا۔ گھر میں وہ ایسے تھا جیسے وحشی ہو، جس پر ہر وقت غصہ سوار رہتا تھا۔ ایک دن میں اس کے میلے کپڑے دھونے لگی تو اس کی جیب پر میرا ہاتھ لگا۔ اس کی جیب سے نکلی چیز پر میں حیران رہ گئی۔ میں نے شوہر سے پوچھا تو وہ گھبرا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہاں، میں یہ سب کرتا پھرتا ہوں۔ بولو، مجھ پر شک کرتی ہو، میری جاسوسی کرتی ہو؟ رضا، تم درندے نکلے ہو۔ سچ بتاؤ، اب تک کتنوں کی زندگی کو ختم کر چکے ہو؟ میں افسوس اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولی تھی۔ یہ بات بڑھتی بڑھتی مار پیٹ تک آن پہنچی تھی۔ تم بکواس کرتی ہو، میرے آگے زبان چلاتی ہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ وہ بھی غصے میں آتا ہوا میری طرف مجھے مارنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے گلدان اٹھا لیا۔ میں خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے جانے انجانے میں نے اپنے شوہر کے سر پر گلدان زور سے مار دیا۔ ایک خون کا فوارہ زمین پر گرا اور پوری زمین سرخ ہوگی۔ وہ خود بھی پورے قد کے ساتھ زمین پر بہواس ہو گیا تھا۔ شاید محلے والوں نے ہمارے جھگڑے کی آوازیں سن لی تھی، اس کے لیے پولیس کو کال کر دی۔ گھر کے باہر سے آتے ہوئے سائرن کی آواز نے مجھے حواس بختہ کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اتنے میں پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور مجھے اپنی حراست میں لے لیا اور لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی، شاید وہ بھی کسی کا قتل کر کے آئی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جایا کرتی۔ وہ بوڑھی عورت کچھ عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جاتی تو کبھی رونے لگ جایا کرتی تو کبھی بالکل ہی خاموش ہو جایا کرتی۔ مجھے اکثر یہ گمنام ہوتا کہ وہ پاگل ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ شروع میں بہت مشکل رہا تھا۔ میں رات بھر جاگتی رہتی کہ کہیں عورت مجھے کچھ کر نہ دے۔ آخر ایسا کب تک چلتا؟ میں کب تک اس طرح سے خوف زدہ رہتی؟ لیکن پھر میں نے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اب جتنی بھی زندگی ہے مجھے یہیں گزارنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت بھی میرے ساتھ اسی جیل میں رہے، اس لیے میں نے ہمت کی اور اس سے ڈرنے کی بجائے پرسکون ہوگی۔ میں اکثر ہی اپنے شوہر کے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔
इस तरह सब चलता रहा, लेकिन मुझे एक चीज ने हमेशा तजस्सुस में रखा। वो बूढ़ी औरत हर रोज एक तस्वीर को देखकर रोया करती थी। कई कई घंटों तक इस तस्वीर को देखती और रोती रहती। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने बहुत बार सोचा कि बुढ़िया से तस्वीर लेकर देखूं, लेकिन इसकी नजरें इतनी अजीब सी हुआ करती थी कि मुझे खौफ सा आने लगता था और मैं हमेशा इसी तरह अपना इरादा तर्क कर दिया करती थी। एक रोज वह बूढ़ी औरत रोते हुए साथ साथ कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे माफ कर दे, वापस आ जा, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गौर से ये अल्फाज सुने थे। मुझे हैरत हुई कि ये बूढ़ी औरत किसकी तस्वीर से बातें कर रही है। आखिर ये कौन है और आखिर ऐसा क्या हुआ है इस औरत की जिंदगी में? क्या इसने वाकई किसी का कत्ल किया है? मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि इस औरत से पूछूं कि आखिर ये तस्वीर किसकी है। इसलिए मैं उठी और इस बूढ़ी औरत के पास गई। मैं इसके पास बैठी ही थी कि वो एकदम से मुझ पर झड़प पड़ी। इसके किए गए अचानक हमले से मैं संभल नहीं पाई और कमर के बल जमीन पर गिर गई। मैंने अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन मेरी कमर में शदीद तकलीफ की वजह से मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ कोई है। मुझे इतने में बागी बागी तो लेडी कांस्टेबल आई और मुझे बूढ़ी औरत से आजाद करवा दिया। वो बूढ़ी औरत कांपते हाथों के साथ मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। एक कांस्टेबल ने इसे पकड़ रखा था। मैं समझ नहीं पाई कि इसने यह सब कुछ क्यों किया है। मुझे मेरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिल एकदम से घबराने लगा था। मुझे लगा कि जैसे मैं अभी अपने होश गवा दूंगी। बमुश्किल मैं जमीन पर बैठी थी। वो औरत मुसलसल मुझे घूर रही थी। मुझे इसकी नजरें अपने अंदर तक जाती हुई महसूस हो रही थी। मैं आंखें मंदे बैठ गई। मुझे पता न चला कब मेरी आंख लग गई। जेल के अंदरूनी हिस्से में बत्तियां जली और खाने का शोर मचा तो मेरी आंख खुल गई। सुबह की निस्बत मुझे मेरी तबीयत काफी बिगड़ी हुई महसूस हुई थी। मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद खौफ और अच्छा खाना ना मिलने की वजह से मेरी तबीयत खराब रही होगी। 2-4 लुकमे खाने के बाद मैं लेट गई और इस औरत को देखने लग गई। वो अब भी वही तस्वीर लिए बैठी थी। मैंने इसे नजरअंदाज करने के लिए अपने हाथ की तरफ देखा तो इस पर नाखूनों के खरोचने के निशान थे। मेरे मांस पर खून जम चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद मैं खौफजदा हो रही थी। मैंने देखा वो औरत मुझे देख रही थी। वह बूढ़ी औरत अजीब से अंदाज में हंसी। मुझे लगा कि वो एक बार फिर मुझ पर हमला करेगी, इसलिए मैं जल्दी से उठकर जेल की सलाखों के साथ चिपक कर खड़ी होगी। इस बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और बोली, बैठ जा, अभी तेरा वक्त नहीं आया। मुझे मेरी धड़कन बंद होती महसूस हुई। मेरा दिल चाहा कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन चाहने से क्या होगा, मैं तो यहाँ फंस चुकी थी। मैं जेल के अंदर बनी छोटी सी खिड़की से स्याह आसमान को देख रही थी। आसमान की स्याही जैसी स्याही मेरी जिंदगी में भी भर चुकी थी। मुझे दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं मायूस हो चुकी थी, सब कुछ वक्त पर छोड़ चुकी थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये साबित हो गया कि मैंने शोहर का कत्ल अपने बचाव के लिए किया है और अदालत ने मुझे रहा कर दिया, तो तब बाहर निकलकर मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मेरा माशरा मुझे कबूल करेगा? क्या मैं एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार सकूंगी? शायद नहीं, कभी भी नहीं। और बात के जवाब में मुझे मनफी ख्यालात और जवाब मिल रहे थे। मेरी जहनी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं खुद से अपने लिए हर चीज को नफी में समझने लगी थी। दिन गुजरते गए, मेरी तबीयत अब ज्यादा बिगड़ने लगी थी, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। एक दिन वो बूढ़ी औरत मेरे और अपने दरमियान एक कद का फासला रख कर बैठ गई। मैं पीछे को सरकी तो वो यकदम से हंसी थी। जेल की दीवार से इसकी आवाजें टकरा कर मेरे कानों में घुसती चली जा रही थी। पहले से ही मेरी तबीयत खराब हो रही थी और अब ये हंसी, मुझे लगा था कि मेरा जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैंने अपना सर नफी में हिलाते हुए अपने कानों पर हाथ रख दिए। बूढ़ी औरत आगे को झुकी और बोली, तू तो इससे भी कहीं ज्यादा कमजोर और डरपोक निकली। वो मुझे देख रही थी। मैं समझ नहीं पाई इसका मतलब क्या था। कहीं इस औरत का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना तो नहीं था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे मेरी हिफाजत के लिए नजर आई हो। खैर वो दिन गुजर गया। अब अक्सर मेरे पेट में तकलीफ रहती, सर भी चकराने लगा था। अब की बार मुझे जेल के डॉक्टर को दिखाया गया। जो खबर मैंने सुनी थी वो खुशी की थी। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं ठीक से खुश भी नहीं हो पा रही थी। मुझे एक और फिक्र लाहक होगी कि कहीं वो बूढ़ी औरत इसे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं डर गई। अपनी जान से ज्यादा अब मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हर सूरत में अपनी हिफाजत करूंगी। चेकअप के बाद मुझे दोबारा जेल में लाया गया। जब मैं अंदर आकर बैठी तो सामने बनी छोटी सी खिड़की को देख रही थी, जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने सुना कि वो बूढ़ी औरत कुछ बोल रही थी। ये छोटी सी खिड़की से आती रोशनी
सिर्फ मुझे वक्त के बारे में बता सकती है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि ये छोटी सी खिड़की अगर तुझे कोई राह दिखा देगी तो तेरी ये भूल है। वो कहते कहते हंसी थी। मैंने इसे कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से भागने का सोच रही हूँ? मनहूस औरत, ये जेल की 4 इंच की खिड़की तुझे निकलने का रास्ता नहीं दे सकती। खिड़की की तरफ इशारा करती वो बोली थी। अपनी बात कहकर वो फिर से हंसती चली जा रही थी। मुझे लगा कि इसे फिर से दौरा पड़ा है। मैं खामोश होकर बैठ गई। वो कितनी देर तक हंसती रही। रात ने जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख बूढ़ी औरत की सिसकियों से खुली थी। मैं आंखें मसलती उठकर बैठ गई और इसे देखा। वो इस तस्वीर को देखकर रो रही थी। इसका चेहरा आंसू से तर था। बार बार वो आंखें रगड़कर अपने मैले डुबटे आंसू साफ करती जा रही थी। मुझे एक बार फिर तजस्सुस ने अपनी तरफ लिपट में ले लिया था। बाहर लॉन में जलती छोटी सी बत्ती की वजह से काफी हद तक रोशनी थी। मैं उठी और एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर मुझे बुढ़िया का हमला याद आया और मैं दोबारा वहीं पर बैठ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो तस्वीर देख सकूं। मुझे खौफ था कि कहीं वो बूढ़ी औरत कुछ कर ही ना दे, इसलिए मैंने कुछ भी करने से बेहतर यही समझा कि खामोशी से बैठ जाऊं। एक दिन मुझे मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ती हुई महसूस हुई। कमर में उठती तकलीफ की वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मेरा गला प्यास की वजह से खुश्क हो रहा था। मैंने उठकर पानी पीना चाहा, लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने इस बूढ़ी औरत को आवाज दी, प्लीज मुझे पानी पिला दो। बंद आंखों से मैंने देखा कि वो गिलास पकड़े मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो मेरी तरफ आई और पूरा गिलास मुझ पर उल्टा दिया। कुछ पानी मेरे मुंह के अंदर गया और कुछ मेरे नाक में चला गया, जिसकी वजह से मैं खांसती रही और वो जमीन पर लेटती हंसती चली जा रही थी। मेरी आंखों से पानी निकलता जा रहा था। मैंने धुंधली बसारत से देखा कि वो हंस रही थी, तालियां बजा रही है। मुझे शदीद खौफ आया। मुझे एक बार फिर गुमनान हुआ कि वो वाकई पागल है, यहाँ सिर्फ मुझे अजियत देना चाहती है। मुझे लगा कि मैं भी चंद दिनों में पागल हो जाऊंगी। मेरे खांसने की वजह से एक लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे सहारा देकर बाहर ले आई। मुझे अपनी पुष्प पर बुढ़िया की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बुलंद आवाज में कह रही थी, तू अभी नहीं मरेगी, मैं तुझे वैसे ही तकलीफ दे देकर मार दूंगी जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। इसकी बात सुनते जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया था। बेख्तियार मैंने जड़ी रही और बाहर बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कब इसकी बेटी को मारा है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। कुछ दिन से ये सब चलता जा रहा था। वो तस्वीर देखती और रोती रहती। मेरे जिस्म में जान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती महसूस हुई थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे फिर तजस्सुस ने घेर लिया। मैं उठी और बुढ़िया के पास गई और इस तस्वीर को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन बुढ़िया ने तस्वीर पीछे करते मुझे धक्का दे दिया और खुद कोने में बैठकर वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, मनहूस औरत दूर रह मुझसे, खागी तो मुझे भी सब खा जाएगी, खुदा करे तुम मर जाए। गुस्से में बोलने के साथ साथ वो रो रही थी। इसका जिस्म भी कांप रहा था। मैं हैरान उलझी नजरों से इसे देखती रही। मेरी वजह से इसका कौन सा नुकसान हुआ है? आखिर वो किसकी तस्वीर है जिसे वो देखकर रोती रहती है? मैं उलझ चुकी थी। मुझे अब हर हाल में तस्वीर देखनी थी। मुझे जानना था कि आखिर वो किसकी तस्वीर है। मैंने रात होने तक का इंतजार किया। बुढ़िया के सामने मैंने सोने की अदाकारी की और लेट गई। जब बुढ़िया को यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बुढ़िया सो गई है। मैं दबे पांव उठी और इसके पास आई और तस्वीर इसके बिस्तर से निकाल ली। तस्वीर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की मुझे जानी पहचानी लगी थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पाई थी कि ये कौन है। इतने में बुढ़िया उठकर बैठ गई और मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने खामोशी से तस्वीर इसके पास रख दी और वहां से उठ गई। अभी मैंने 2 कदम बढ़ाए थे कि वो बुढ़िया बोल उठी, जानती हो ये कौन है? इसने सवालिया अंदाज में मुझसे पूछा। मैंने गर्दन मोड़े इसे देखा तो अब वो नॉर्मल लगी थी। आज मैंने इस बुढ़िया की नजर में अपने लिए नफरत की बजाय बरसों पर नाज कम जलकता देखा था। कुछ देर के बाद मैं वही खड़ी सोचती रही कि कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी, कहीं ये इसका कोई मंसूबा तो नहीं। लेकिन फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बुढ़िया के पास बैठ गई। तब वो बोलना शुरू होगी, तेरे शोहर का नाम रजा है ना? मैं यकदम से घबरा गई और हैरान होगी कि इसे कैसे मेरे शोहर का पता था। अब कौन सा राज मुझ पर इंकशाफ होने वाला था। खैर मैंने इसे हाँ में जवाब दिया। ये तस्वीर मेरी बेटी फरा की है। देख मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा कितना खूबसूरत है। मेरी बेटी और तेरा शोहर रजा एक साथ पढ़ते थे, दोनों में दोस्ती भी थी। मेरी बेटी रजा का बहुत जिक्र किया करती थी। मुझे लगा था कि ये महज दोस्ती है, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। और फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी बेटी को रजा के लिए तड़पता देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं समझाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को रजा से मोहब्बत हो चुकी थी। वो हर वक्त घर में रजा का जिक्र करती रहती। फोन पर लंबी लंबे बातें भी होती थी, लेकिन रजा को मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ मेरी बेटी के साथ अपना वक्त पास कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि इसे छोड़ दो, इसके पीछे कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ निकम्मा
ड्रामा है, ये कुछ नहीं दे सकता। तुझे मोहब्बत की शादी करेगा, तुझे रोटी बले देगा लेकिन इज्जत नहीं देगा, तुम्हें हर लम्हा जलील करेगा। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक ना मानी और यह सिलसिला चलता रहा। मैं बदनामी के खौफ से चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी बेटी के बारे में पता ना चले। फिर एक दिन रजा की पढ़ाई मुकम्मल होगी और वो कॉलेज छोड़ गया। कॉलेज के बाद साथ साथ इसने मेरी बेटी को भी छोड़ दिया। तब मेरी बेटी ने जिंदगी से हाथ खींच लिया। मेरे दिल को तकलीफ होती थी कि जिस औलाद को नाजों से पाला अब वो अंधेरों सलाब की तालब बन गई थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और इसके कितने रिश्ते आए लेकिन वो हर बार इनकार कर देती थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, इसे समझाती रही। फिर एक दिन मेरी बेटी को पता चला कि रजा ने शादी कर ली है। तब वो मुकम्मल टूटकर मायूस रहने लगी थी। मुझे नहीं मालूम कि इसके दिमाग में इतने बड़े कदम का ख्याल क्यों आया। इसने एक लम्हे के लिए भी मेरा नहीं सोचा, ना ही अपने बाप का सोचा। इस शख्स की मोहब्बत के लिए इसने हमें छोड़ दिया, हमें दुनिया की तेजदार ज़बान तले रख दिया। एक दिन इसने खुदकुशी कर ली। हम तो इस बात से भी बेखबर थे कि वो रजा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी बेटी के साथ वो बच्चा भी मर चुका था। ये जानने के बाद मेरा शौहर जिल्लत और रसवाई के खौफ से ही मर गया। लेकिन मैं नहीं मरी थी। मैंने सोचा कि काश मुझे भी मौत आ जाए, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। मुझे अजियत काटती रही। मैं रोज किसी न किसी को जवाब देती थी। मैं लोगों का जवाब दे देकर थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रजा से बदला लूंगी। इसलिए मैंने लोगों को मैसेज देकर इसे गलत सोबत की तरह मतवजा किया। वो पहले भी गलत कामों का आदी था। बस मैं ये चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, इसकी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो जाए, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे जिस तरह मेरी बेटी नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरा एक रिश्तेदार आया और इसने मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें की। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने इसे कत्ल कर दिया। रजा इस वक्त बर्बादी की जानब गामजद हो चुका था। मैं कत्ल के जुर्म में जेल आ गई। मेरे जेल आने के चंद माह बाद रजा का कत्ल हो गया जो तुमने किया, और तुम भी जेल में हो। जब मैंने तुम्हें पहले दिन देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर तुम रजा की जिंदगी में ना आती तो शायद मेरी बेटी ना मरती, शायद वो आज जिंदा होती, मेरे साथ होती, मेरा शौहर भी शायद जिंदा होता। मैंने तुम्हें इस हालत में भी अजियत दी। मैंने अपनी औलाद खो दी है। तुम्हें भी औलाद खो देने का दुख महसूस करवाना चाहती थी। वो बुढ़िया बोल रही थी और हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। फिर वो खामोशी से लेट गई और मैं भी अपनी जगह आकर लेट गई। एक ही हालत में बैठ बैठ कर मैं थक चुकी थी। मैं सोच रही थी मेरे साथ जो हुआ क्या इसमें मेरा कसूर था या मेरे शौहर की गलती थी कि जिसने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली। मैं मुख्तलिफ सोचों में गिरी, कब गहरी नींद में सो गई पता ही ना चला। सुबह मेरी आंख अजीब सी आवाज पर खुली थी। पूरी जेल में शोर मचा हुआ था। हर तरफ से आती बारी बोटों की आवाजें मेरे कानों में लड़ रही थी। मुझे लगा कि शायद आज किसी बड़े अफसर का जेल में विजिट है, इसलिए इतनी भाग दौड़ मची है। मैं उठकर बैठ गई और फिर जो मंजर मेरे सामने आया वो मेरा दिल दहला गया। जेल के एक कोने में वो बूढ़ी औरत खून से लथपथ पड़ी थी। इसकी आंखें पूरी खुली थी, रंग नीला हो चुका था। मैंने नजर इसके जिस्म पर डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस औरत ने अपनी गर्दन लस अलकास किसी तेज चीज से काट ली थी। इतने में चंद पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए और बुढ़िया की लाश को तखने पर डाल कर ले गए। मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन मेरी गवाही कौन देता, कौन अदालत में यह साबित था कि मैंने अपने बचाव के लिए अपने शोहर को मारा था। मैं मायूस हो चुकी थी। इसी तरह महीना गुजरा और मेरी समाअत का वक्त आन पहुंचा। मुझे अदालत में ले जाया गया। मैं कटहरे में सर झुकाए खड़ी थी। मेरे पास कोई सबूत गवाह नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी, मेरा बच्चा ऐसी जिंदगी आंख खोलेगा जहाँ जाने के नाम से भी लोग डर जाया करते थे। मैंने आंख बंद करके अपने अल्लाह से मदद चाही और मेरा यकीन था कि इसी वक्त अदालत में एक दुबली पतली लड़की दाखिल हुई। हाथ में मोबाइल पकड़े हुए और गमती रंगत की लड़की चलती चलती जज के सामने आई और कुछ दिखाने की दरखास्त की। इसने अपने मोबाइल पर वीडियो चलाकर जज के सामने रख दी। मैं इस लड़की को देख रही थी। वो मेरे घर के साथ ही रहती थी। मैंने इसे देखा, वो जैसे कह रही थी। जज साहब, जिस रोज ये वाकया हुआ था मैं अपनी छत पर थी। मैंने देखा कि रजा नशे में अपनी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में ही इसकी बीवी ने अपने बचाव के लिए गुलदान उठाकर इसके सर पर मार दिया और वो वहीं पर मर गया। और सबूत के तौर पर यह वीडियो है जो मैंने इसी वक्त बनाई थी। जज साहब, यह सीधा सीधा सेल्फ डिफेंस केस है। किसी भी पहलू से यह साबित नहीं होता कि रजा को मारना एक सूझी समझी साजिश है। इसकी बीवी ने खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया और रजा मर गया। रजा नशे में था, वो अपने हवास में ना था। मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस औरत को रहा कर दिया जाए। मैं मायूस थी, लेकिन रोशनी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे यहाँ से निकालने वाला मेरा मसीहा मेरे सामने था। अदालत
जज ने तमाम सबूतों के तहत मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इस लड़की ने मेरी मदद इंसानियत के तहत की थी। आज मैं अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती हूँ। इस बात को 15 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी बेटी को खुद एतमाद बनाया है। मैं मेहनत से काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस होता है कि काश मैं अपने शोहर से तहम्मत से बात कर लेती। काश कि मैंने जांच पड़ताल की होती तो शायद आज मेरी बेटी के सर पर इसके बाप का साया होता। जेल में गुजरा वक्त मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मैंने जिंदगी को अनमोल जान बना लिया था। मुझे मालूम हो चुका था मायूसी इंसान को मार देती है, लेकिन पुख्ता यकीन अंधेरे से आगे की रोशनी जैसा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी बेटी के सर पर इसके बाप का साया होता। जेल में गुजरा वक्त मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मैंने जिंदगी को अनमोल जान बना लिया था। मुझे मालूम हो चुका था मायूसी इंसान को मार देती है, लेकिन पुख्ता यकीन अंधेरे से आगे की रोशनी जैसा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।